Janani Janmabhumisha Swargadapi Gariyasi. Behalf of the bodies of trustees and our revered founder, Dr. Vishwanath Karad sir, let me welcome from my bottom of heart the chief guest of today's program, Padma Vibhushan Sumitra Tai Mahajanji, the former Speaker of Lok Sabha. I also wish to welcome the special guest of honor, the former Union Minister and the former Speaker of Rajasthan Assembly, Shri C.P. Joshi Sahab. I also wish to welcome a very senior corporate leader who created a wonderful environment in the country in the startup domain, Mr. Aman Gupta. You can just wave the hand so that we all know that he has created a wonderful company also and so much, and he will be also talking to you. We welcome you, Mr. Aman Gupta. Of course, our Vice Chancellor, Dr. R.M. Chitnis, all the student leaders sitting, the President of the student body, Secretary General, and various other office bearers of student body. And last but not the least, you student community who is privileged today to sit along with some 200 member of legislative assemblies and member of legislative councils from 26 states, from 32 political parties. I want to welcome all the legislatures sitting in the audience. Please give a big round of applause. That it is like a mini assembly, I can say, rather quite a big assembly of so many states MLAs. For the first time, the little film what you saw just now, the National Legislators Conference, year before this edition was conducted in city of Mumbai. After independence, first time some 1800 MLAs and MLCs gathered with the blessings and the support and the guidance of Shri Sumitra Tai Mahajanji, Meera Kumarji ji, former Speaker of Lok Sabha, Shivraj Patil Sahab, and the late Shri Manohar Joshi ji. My dear students, you all must be curious that this very program. Very soon, we are going to confer very important award on Shri Satish Mahana Sahab, who is a very senior veteran leader, 8-time member of Legislative Assembly from Uttar Pradesh, and he is here to communicate the message of this DLGP program, on whom we are going to confer this Ideal Speakers Award. Mahana Sahab, you can just wave the hands for the students. We want to welcome you. This is a very wonderful thought by we academic members and the team some 7 years back, that under the banner of Indian Students Parliament, Bharatiya Chhatra Sansad, the democratic values, the good governance values, the public policy and the leadership values, to instinct those values in each one of you. What is the method, what is that mechanism at such a large scale we can establish? And in the year 2011, for the first time, this platform we could establish by the name of Indian Students Parliament. I'm also very happy, my dear students, to tell you, and you all, many of you are aware, that the reflection of Indian Students Parliament, they are not just in the state of Maharashtra, but the Government of India, Youth Ministry, they also have started one platform where we have also played a little role. And the similar, many such platforms across the country by the Vidhan Sabhas, as well as the student community, they could establish various youth parliament. And the youth parliament concept initiation has happened from this very center of the country, MIT World Peace University, MIT School of Government, my dear friends. Let us give a big round of applause to each one of you for your contribution, your participation, the previous batches in particular, the sincerity and the dedication what they have shown. Many a time, the previous generation, all the time they are worried that what will happen, the next generation, what way they are going to take this country ahead. हमारी generation तो बहुत अलग थी, आने वाली generation तो बहुत different है, कैसे होगा देश का? ये चिंता हमेशा हर ऐसे अपने जर्नी में प्रीवियस पीढ़ियों ने अगली पीढ़ी के बारे में की है, और सोसाइटी का इवोल्यूशन होते होते एक बुराई से अच्छाई की तरफ का ये जर्नी, और हम सबको अच्छा बनना है. हमारी सबकी ये कोशिश है कि लोग हमें अच्छा बोले, और हम उस पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं स्टूडेंट्स कि जो समाज में हमारा रिकग्निशन हो और हमारा
एक सुशासन और गवर्नेंस का एनवायरनमेंट पूरे कंट्री में, सबसे बड़ा लोकतंत्र वर्ल्ड का जो भारत है, आप जानते हैं कि अमेरिका इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी एंड द इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, माय डियर फ्रेंड्स. एंड हियर इज अ मैसेज we have been trying to imbibe in the student community that let us not abuse the politicians and political parties. सभी राजनेता चोर है, पॉलिटिकल पार्टियां भ्रष्ट है. इस तरीके का जो एक नोशन थिंकिंग, हम सब अर्बन सेंटर्स के लोग, कॉरपोरेट के लोग, बाकी भी समाज के लोग, हमारे मन में ये भाव होता है. और ये संस्था पिछले 20 साल से MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, जो देश का पहला स्कूल जो बना कि भारत में राजनीति का प्रशिक्षण देने का पहला स्कूल 2005 में इस संस्था ने शुरू किया, इसी बात को पुष्टि देने के लिए कि राजनीति के प्रति आस्था से, देखिए 2, 4, 10 लोगों की वजह से सबको हम बदनाम करना. और मैं पिछले 20 साल से राजनीति में काम कर रहा हूं और ऑल द रिस्पेक्टेड MLAs, आई वांट टू कम्युनिकेट टू यू, मैंने इतना नजदीक से देखा है भारत के सभी दिग्गज, सभी पॉलिटिकल पार्टियों के पिछले 25 साल से, बहुत बड़े बड़े अटल बिहारी वाजपेयी साहब से लेके कांग्रेस में मनमोहन सिंह जी, सभी लोगों के साथ मुझे 1-on-1 रूबरू करने का मौका मिला MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट की वजह से, भारतीय छात्र संसद की वजह से. मैं सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा, राजनीति दूर से जितनी आसान दिखती है उतनी आसान नहीं है. ये बहुत बड़ा स्ट्रगल है, बहुत बड़ी तपस्या है, ऐसा मैं मानता हूं. सतीश महाना जी, आप एग्री करेंगे. आप सब लोग, आप मतलब मैं हमेशा, आपने पिछले 3-4 साल से इस काम को सराहना दी है. मैं हमेशा बोलता हूं, राजनेता हेल्थ उनकी कैसे बचाते हैं, इतने 12-18 घंटा काम, कॉरपोरेट के लोगों की, समाज के अलग अलग क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं, तब जाके इस पूरी सोसाइटी बनती है. फिल्म के भी लोग हैं, कॉरपोरेट के लोग हैं, बाकी सभी लोग हैं. लेकिन मैं राजनेताओं का जीवन जब मैं नजदीक से देखता हूं तो मुझे कभी कभी लगता है कि हम कितने सौभाग्यशाली है कि इतने प्रिविलेजेस में, इतने कंफर्ट में हमारा शेड्यूलिंग 9 से 5, और मैं देखता हूं कि अपने इतनी बड़ी आबादी को आप सब लोग कैसे जस्टिस देते हैं. तो इसकी सीख बच्चों में कैसे दी जाए, ताकि राजनीति में पढ़े लिखे लोग राजनीति में आने चाहिए, क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट लोगों ने भी बोलना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए. इसीलिए ये पूरा जो लॉट आज यहाँ पे 200 MLAs है, इसमें से मेजॉरिटी ऑफ लोग MTech है, BTech है, MBAs है, PhD होल्डर्स है. और इस संस्था ने हमेशा ये बात का कम्युनिकेशन करने की कोशिश की है कि अमन गुप्ता जी, आप कॉर्पोरेट में सीनियर लीडर है, सोसाइटी और आज की पीढ़ी देखना चाहती कि एक दिन आप भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के कॉर्पोरेट अफेयर्स के मंत्री बन सकते हैं क्या. हम दूर से देखते हैं कि नहीं, ये मैं कहा, मेरा कहाँ वास्ता है वहां. आई थिंक दैट वी नीड टू चेंज, एंड दिस इंस्टीट्यूशन, दिस प्लेटफॉर्म is trying to communicate this message to the student community, my dear friends, that yes, the technocrats, the scientists, Mr. Abdul Kalam was the president of our country. What a great pride. And today also, in the various assemblies of our country, so many qualified, competent, most educated, internationally exposed leaders are decorating our legislative assemblies as well as Lok Sabha also. So Sumitra ताई, ये भाव पिछले 20 साल से, मतलब ये 14वीं एडिशन है भारतीय छात्र संसद की, और मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता है कि जो इसके रिफ्लेक्शन अलग अलग जगह पे हुए हैं NGOs के माध्यम से, लेकिन मैं समझता हूँ वो इनफ नहीं है. CP जोशी साहब, सतीश महाना जी, आप सरकार में हैं, मैं आपको विनती करूंगा कि सभी विधानसभाओं ने इस तरीके के यूथ पार्लियामेंट हम शुरू कर सकते हैं क्या. भारत सरकार ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, बाकी देश के सभी मुख्यमंत्रियों ने भी पिछले कई सालों में मैं देखता हूं कि आपने चिंता जताई है कि इतना जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो यंग इंडिया है, उनको हम चैनलाइज कैसे करें, उनको हम किस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज और सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में उनका भाव पॉजिटिव कैसे रखें, इसके ऊपर सभी सरकारें काम कर रही है. लेकिन मैं विनती करूंगा आप सब लोगों को, और पर्टिकुलरली ऑल द लेजिस्लेचर्स यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, मुझे लगता है ये जो फोरम है भारतीय छात्र संसद का, यूथ पार्लियामेंट का, आप भी आपके क्षेत्र में, आपके जन्मदिन के ऊपर हो या कोई अप्रोप्रिएट टाइम के ऊपर हो, यूथ पार्लियामेंट्स आपके खुद के नाम से शुरू कर सकते हैं. उसकी हमने एक बेहतरीन सिस्टम बनाई है, और ये एक एम्बिशन है. मैं, सुमित्रा ताई जब लोकसभा स्पीकर थे तो मैं ताई को उस वक्त भी बोला था कि हम पूरे भारत के सभी जो 4,500 MLAs है, वो अपने अपने क्षेत्र में यूथ पार्लियामेंट, ये जो कंसेप्ट जो सफल हुआ है, बना सकते हैं क्या. तो इसी का कारण है कि आज हमने आपको विनती किया कि यू ऑल कम हियर. जो अनऑर्गेनाइज्ड यूथ है, जो कॉलेजेस में जो यूथ है, उनको इस तरीके के प्लेटफॉर्म के माध्यम से
हम चैनलाइज कर सकते हैं डेमोक्रेसी के प्रति, लीडरशिप के प्रति, गवर्नेंस के प्रति एंड पब्लिक पॉलिसी के प्रति। मैं खुद समझता हूं, सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहूंगा, आप में से कुछ पॉलीमर इंजीनियरिंग के, पेट्रोलियम के, इकोनॉमिक्स के, डिजाइन के, लॉ के, सभी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स यहाँ पे, इस संस्था के भी और बाहर से भी बहुत सारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं। आपको लगेगा कि इसका मेरा डायरेक्ट वास्ता क्या है। मैं बताना चाहूंगा, unless and until you understand the society need, you cannot come out with any product in corporate world, society में। Mr. Aman Gupta, what company he has created, worth how many crores exactly I don't know, but it was over 2,000 crores, somebody communicated to me. Unless and until you guys understand your society, you cannot apply your knowledge, your degree, understanding in the practical approaches, and then only the true startup culture, the affordable solutions for this country. This country cannot copy the United States, some of those ideas, or the Europe, some other developed economies of the world, and try to copy the similar model here for our country. And we all know that in the very affordable cost, so many such inventions have happened, and our country is progressing further. But मैं एमएलएज को भी कहना चाहूंगा कि सर, आप इसके बारे में, सभी रिस्पेक्टेड एमएलएज को मेरी विनती है कि आप जरूर इसके बारे में, इस प्लेटफॉर्म के बारे में सोचें। और बहुत हमारी पूरी यंत्रणा यहाँ पे बनी हुई है। हम आपको अपील करते हैं कि 2 दिन जब अपना कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम अभी शुरू होगा दोपहर में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी उसमें आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री भी एड्रेस करेंगे, और भी बहुत सारे जो नॉन पॉलिटिकल लोग जो है, एआई के माध्यम से फ्यूचर पॉलिटिक्स का कैसे हो सकता है। 10-20 साल पहले जो कल्पनाएं हमने मन में की नहीं थी, वो कल्पनाएं आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से साकार हो रही है। तो ये सब चीज़ों का एक अंडरस्टैंडिंग नेताओं के सामने, आप लॉ मेकर्स के सामने रखने की भूमिका से ये जो स्ट्रक्चर पैरेलली नेशनल इंस्टीट्यूट्स कॉन्फ्रेंस की यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट और भारतीय छात्र संसद, ये दोनों का हमने यहाँ पे मिलाप किया है। 9 तारीख को all the respected MLAs are going to talk to all the student community in 150 classrooms, my dear students. You all are going to get opportunity. All the respected MLAs will be distributed and they are going to have one-on-one dialogue with you. So very unique model for the first time in the country. Satish Mahana साहब, आप सबसे ज़्यादा MLAs की बहुत बड़ी विधानसभा हमारे देश की, जिसका आप नेतृत्व करते हैं। तो ये जो मॉडल यहाँ पे, all MLAs, they are going to get distributed in 170 classrooms. And they are going to talk to the students about the social problems, social challenges to transform our nation, and they are going to appeal to the student what are the solutions they can come out for the future India. So much can be said, my dear students. मैं फिर से एक बार आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ पे एक शैडो गवर्नमेंट का भी एक कंसेप्ट हमने बनाया है। हमारे कलीग्स आपके सामने इसके बारे में बात करेंगे। जैसे माननीय प्रधानमंत्री है तो शैडो प्राइम मिनिस्टर, शैडो एग्रीकल्चर मिनिस्टर, इस तरीके से you all have to, we will get the opportunity, some 200 students to act as the ministers, and this will be the shadow government. You have to analyze the national policies of the country and give the feedback to our government machinery through various such ideas. मैं आप सभी स्टूडेंट्स को मैं विनती करना चाहूँगा कि DLGP, डेमोक्रेसी लीडरशिप गवर्नेंस प्रोग्राम, ये ऑडिट प्रोग्राम, क्रेडिट प्रोग्राम होने जा रहा है। हमारे जितने भी MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के छात्र यहाँ पे बैठे हुए हैं, you all have to complete this program to fulfill finally your degree requirement. So please take this particular aspect very, very seriously. Some of you may be feeling today, अरे ये क्या बोरिंग हमें यहाँ पे बिठाया है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा 10 साल बाद आप जब पास आउट होंगे तो उसके बाद जब सोसाइटी में जाएंगे तो आपको याद आएगी भारतीय छात्र संसद की डेमोक्रेसी लीडरशिप गवर्नेंस पब्लिक पॉलिसी प्रोग्राम की एक पर्सपेक्टिव हमारा बना, देश के बारे में का चित्र हमारे सामने आया, और हम कुछ एक अलग तरीके से इसका उपयोग हमारे प्रैक्टिकल जीवन में कर पा रहे हैं। मैं फिर से एक बार सतीश महाना साहब आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आज जो आपको यहाँ पे अवार्ड आइडियल विधानसभा स्पीकर का होने जा रहा है, आपके जीवन में और भी रिकग्निशंस बहुत सारे मिले हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि स्टूडेंट्स के सामने ये जो रिकग्निशन आपका यहाँ पे जो हो रहा है पूरे भारत के, और वो भी सुमित्रा ताई जी के हाथ से, ये एक मुझे लगता है अपने आप में एक मैसेज है। मैं फिर से एक बार आप सभी का यहाँ पे स्वागत अभिनंदन करके मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। I say good luck to all the students. Please engage yourself till 10th afternoon 1 o'clock. So many important speakers are going to be here. You all will be getting the opportunities to have a question and answers.
and we definitely take this vision ahead of Bharatiya Chhatra Sansad. Jai Hind, Jai Bharat.